ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड में ग्लाइसिन एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कौन कौन से अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं? मेथियोनिन, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। So first we will study about the glycine. It is the simplest amino acid and it is non-essential. तो amino acid में according to the requirement essential and non-essential amino acids होते हैं. And metabolic, it is glycogenic amino acid, means it produce glucose and it involve in the one carbon metabolism and it form the interior structure of the collagen. कोलेजन के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर थर्ड एलिमेंट ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्रोड्यूस सम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लाइक हीम, प्यूरिन, क्रिएटिन। देन हाउ द ग्लाइसिन इज सिंथेसाइज्ड? इट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फोर प्रोडक्ट्स, वन इज सेरीन, थियोनिन एंड वन कार्बन मेटाबॉलिज्म एंड अदर कंपाउंड्स। तो सीरीन से with the help of the serine hydromethyl transferase is form the glycine, and the vitamin that is required in this reaction is tetrahydrofolic acid. Then it is synthesized from the theanine, then from the carbon dioxide ammonia, and it is also formed from the glutamate or aniline. So this is the glycine cleavage, means glycine से क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लाइसिन से अमीनो मिथाइल ग्रुप बनेगा, देन उसके बाद अमोनिया प्रोड्यूस होगा, एंड द कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन इज tetrahydrofluorate, लिपोमाइड एंड NADH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड PLP, pyridoxine pyrophosphate, which is विटामिन B6, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो ये decarboxylation reaction है. So this is the glycine cleavage system. Glycine undergo oxidative deamination, means carbon dioxide under the presence of oxygen हो रहा है, का removal oxygen की condition में हो रहा है, that's why it is known as oxidative deamination. And ammonia is released. It is a multi-enzyme complex, means many enzyme is involved in this reaction. Then how it proceed to the glycogenic pathway? The glycine form the serine and this serine form the pyruvate, and from pyruvate carbohydrate is produced, that's why this is a glycogenic amino acid. So glycine से serine with the help of the serine hydroxymethyl transferase serine बनेगा, and serine से वापस glycine. It's a interconvertible reaction, and methylated tetrahydrofluorate is converted into tetrahydrofolic acid. Then serine से amino acid होके pyruvate बनता है, and इस pyruvate से it involve in the formation of glucose. Then this is glycine का general metabolism. It is formed from the protein serine, theanine and ammonia, and it involve in the formation of ammonia, ammonia से फिर then urea. Then serine से आपका बनेगा pyruvate, cysteine and choline. Then glycolic acid से oxalate बनेगा, then creatine, creatine से creatine phosphate and creatinine. It form the purine ring, it form the heme, it form the conjugated glutathione, bile salt and help in the conjugation reaction, जिससे detoxification होता है body में. So this is the general metabolism of glycine. Then the creatine and creatine phosphate, these are important compounds which is formed from the glycine, and creatine phosphate जो होता है that is a source of stored energy in the muscle. So creatine आपका high energy compound होता है, and energy आपके किस form में store होती है? phosphocreatine. जब phosphocreatine creatinine में break होगा तो energy produce होगी in the muscle. And how the creatinine is formed? It is formed from the three compounds, glycine, arginine and methionine. So first step आपका किडनी में होगा, सेकंड स्टेप आपका लिवर में होगा, एंड थर्ड स्टेप आपका मसल में होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिनिन. ये आपकी रिएक्शन है ग्लाइसिन एंड एलिनिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ग्लाइसिन एलिनिन अमीनो ट्रांसफरेज, मींस अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, एंड इट फॉर्म द ग्वानिडो एसिटिक एसिड एंड ऑर्निथिन. एंड फिर इस ग्वानिडीन एसिटो एसिड के फर्स्ट स्टेप होगा आपका किडनी और पैनक्रियाज में, सेकंड स्टेप आपका लिवर के अंदर होगा, जिसमें ग्वानिडो एसिटेट
से बनेगा क्रिएटिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ग्वानिडो एसिटाइल मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज यानी मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है SAM से SAH। SAM मीन्स S एडिनोसाइल मिथ्योनिन एंड SAH मीन्स S एडिनोसाइल होमोसिस्टीन। ये हम ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। देन लोफमैन रिएक्शन, जो कि क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्रिएटिनिन से बनेगा क्रिएटिनिन काइनेज से क्रिएटिनिन फॉस्फेट, एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट से बनेगा क्रिएटिनिन एंड ADP से ATP फॉर्म होके मसल में एनर्जी प्रोवाइड होगी। देन क्रिएटिनिन से क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड देन फोर्थ स्टेप होता है स्पॉन्टेनियसली क्या बनता है, क्रिएटिनिन। देन जो क्रिएटिनिन काइनेज होता है दैट इज अ आइसोएंजाइम, मींस एंजाइम जिसके अलग अलग फॉर्म अलग अलग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ये डाइवेलेंट आइसोएंजाइम होता है। MM स्टैंड फॉर द मसल एंड BB स्टैंड फॉर द ब्रेन एंड MB इज फॉर द हार्ट। जब CK MB करते हैं दैट इज अ मार्कर फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट आपका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया इन द मसल एंड CK MB इट इज अ डायग्नोस्टिक मार्कर इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो CK MB का लेवल इंक्रीज हो जाता है। देन क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो होता है दैट इज लेस सिक्रेटेड इन द किडनी एंड जो क्रिएटिनिन होता है दैट इज इंक्रीज इन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि ये मसल में स्टोर्ड होता है एंड कोई भी मसल इंजरी होगी तो आपका क्रिएटिनिन जो होगा वो बढ़ेगा। नॉर्मल वैल्यू जो होती है क्रिएटिनिन की वो 0.2 से 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और जो क्रिएटिनिन होता है इसका प्रोडक्शन स्पॉन्टेनियस होता है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द एंजाइम, कंटिन्यूअस होता है एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग होते हैं। लेकिन जो क्रिएटिनिन होता है इट्स अमाउंट इज बेस्ड ऑन द मसल मास, क्योंकि मसल में प्रोड्यूस होता है दैट्स व्हाई इसकी जो प्रोडक्शन है वो मसल मास के ऊपर वेरी करती है। देन इसका एक्सक्रीशन कंटिन्यूअस होता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी मेल एंड फीमेल, क्योंकि मेल एंड फीमेल में मास डिफरेंस होता है दैट्स व्हाई स्लाइटली वेरी करती है। मेल्स के अंदर 0.7 से 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है एंड क्रिएटिनिन फीमेल्स में 0.6 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। एंड क्योंकि ये किडनी से प्रोड्यूस होता है सो दैट जो मेजरमेंट होता है क्रिएटिनिन का उसको अपन किडनी इंजरी से कोरिलेट करते हैं, बिकॉज जो किडनी का प्रोडक्शन होता है एक्सक्रीशन होता है फ्रॉम द किडनी, जो क्रिएटिनिन का क्लियरेंस जिसे अपन कहते हैं मींस कितना ब्लड आपके किडनी में आया उसने कितना फिल्टर करा दैट इज अ क्लियरेंस। तो जो किडनी का क्लियरेंस होता है वो इक्विवेलेंट टू होता है GFR मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो बाय सीइंग द creatinine clearance we can estimate the kidney injury. Then and it is better than the clearance में हम यूरिया भी करते हैं, यूरिया क्लियरेंस, and it is better than the यूरिया क्लियरेंस क्योंकि ना तो ये सिक्रीट होता है ना ही रीएब्जॉर्ब होता है। तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो इक्विवेलेंट टू द GFR होता है। That's why we prefer creatinine clearance apart from the urea clearance. Then this is a general production of creatine, glycine and alanine, then guanidino acetate, then creatinine, creatinine phosphate and creatinine. Then application of creatinine and creatinine, ये renal function को sensitive marker होता है creatinine and ये muscle dystrophy में भी increase होता है, लेकिन last stage of muscle dystrophy में decrease हो जाएगा क्योंकि muscle mass decrease हो जाएगा, तो creatinine का भी level decrease हो जाएगा। अब क्योंकि muscle mass बहुत सारी condition में डिक्रीज होता है, जैसे कि वुमेन्स में कम होता है, ओल्ड एज में मसल मास डिक्रीज होता है, बेड रिडन पेशेंट होते हैं उसमें भी मसल मास की मसल वेस्टिंग होती है। एंड यदि आप लो प्रोटीन डाइट लोगे तो आपका मसल डेवलप नहीं होगा। तो इन कंडीशन में फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपका क्रिएटिनिन जो है वो लो रहेगा। देन इट इज अ मार्कर ऑफ टू डायग्नोज द मायोकार्डियल इंफेक्शन CK-MB। देन इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथ्योनिन। यदि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की एरर होगा तो क्रिएटिनिन का सिंथेसिस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा।
Then metabolic products of glycine is the heme, creatine, purine and glutathione, and it acts as a conjugating agent to remove the toxins that are produced in our body. So ये conjugate करती है bile के साथ. Bile क्योंकि lipid है, that's why it need to be bind with the water soluble compound so that it can be easily absorbed and transport in the body. So it conjugate with the bile acid like glycocholic acid and glycosinodeoxycholic acid. Then it bind with the benzoic acid and form the hippuric acid, and it is excreted in the urine. Then it acts as a neurotransmitter in the brain and the spinal cord, and it help in the conjugation of protein like collagen, क्योंकि collagen में हर third amino acid glycine होता है, and it provide the tensile strength to the collagen. Then heme का synthesis, जो first product होता है heme के synthesis में ALA means amino levulinic acid. It produce that with the help of the glycine and succinyl coenzyme. So it is a precursor of synthesis of heme. Then ये प्यूरिन के स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है. जो 4 and 5 कार्बन है and 7 कार्बन of purines, these are made up of glycine. Then it help in the formation of glutathione. It is a tripeptide, means 3 amino acid forms होते हैं, 3 amino acid होते हैं इसमें, glycine, cysteine and glutamic acid. And glutathione as a antioxidant हमारी बॉडी में यूज होता है. इट मेंटेन द परमेबिलिटी ऑफ आरबीसी, एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन में यूज होता है. सो दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइसिन, नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसिनीमिया. यदि ग्लाइसिन क्लीवेज सिस्टम में डिफेक्ट होगा तो ग्लाइसिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजन में आएंगे. इनका कोई डेफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं है. Then glycinuria, it is a rare disorder of defect in the renal reabsorption. इसके कारण भी ग्लाइसिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. एंड ग्लाइसिन से क्या बनता है? ऑक्सलेट बनता है. ऑक्सलेट जो होता है वो किडनी में एज अ फॉर्म ऑफ स्टोन डिपॉजिट होता है. तो ऑक्सलेट स्टोन जो है वो किडनी में फॉर्मेशन में इंक्रीज हो जाएगी. देन हाइपर ऑक्सिल्यूरिया मीन्स जो ऑक्सलिक एसिड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. 2 है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या है? ये प्रोटीन टारगेटिंग में डिफेक्ट है, यानी जो एंजाइम आपके पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होना चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है. दैट इज अ डिफेक्ट इन द प्रोटीन टारगेटिंग. प्रोटीन टारगेटिंग क्या होती है? जैसे ही आपका मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो प्रोटीन टारगेट होता है, यानी किस ऑर्गन पे जाके उसको फंक्शन करना है. ठीक है. तो यदि ये प्रोटीन टारगेटिंग में डिफेक्ट होगा तो वो प्रॉपर उस सेल या उस टिश्यू में नहीं जाएगा, तो उसका फंक्शन जो है वो दूसरे सेल पे एक्टिवेट हो जाएगा. तो जिसके कारण क्या होगा? वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा. सो जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ऑक्सलेट का डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसके कारण ऑक्सलेट एंड ऑक्सलिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है. फिर ऑक्सलेट एज अ फॉर्म ऑफ किडनी में एक्यूमुलेट होके स्टोन फॉर्म करेगा, एंड देन ऑक्सलेट हमारे और भी टिश्यू में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. देन टाइप 2 का जो हाइपरऑक्सिलेमिया है, इसमें डिफेक्ट होता है विद द एंजाइम की एक्टिविटी यदि डेफिशिएंट हो जाएगी तो उसके कारण हमारा टाइप 2 हाइपरऑक्सिलेमिया होता है, जिसमें भी यूरिनरी में ऑक्सलेट स्टोन डेवलप हो जाएंगे. अब इसका मैनेजमेंट क्या है? जब भी स्टोन डेवलप होता है तो वाटर इनटेक इंक्रीज करना पड़ता है ताकि वो रिमूव हो जाए हमारी किडनी से. देन मिनिमाइज द डाइट विद द ऑक्सलेट. ऑक्सलेट ज्यादातर किसमें प्रेजेंट होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टी, कॉफी, स्पिनच, टोमेटो, इसमें क्या होता है? ऑक्सलेट ज्यादा प्रेजेंट होता है. सो इन केस ऑफ स्टोन्स वी शुड अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, टोमेटोज, टी, कोका एंड बीटरूट. देन इससे आपका ग्लाइसिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, विटामिन सी से आपका ऑक्सलिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. एंड यदि ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो स्टोन फॉर्मेशन करेगा हमारी किडनी में. देन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, methionine, cysteine and homocysteine. These are again glucogenic hormone
and these are essential amino acid. Methionine जो है वो हमारा essential amino acid है because it is not produced from the cells and it acts as a precursor of cysteine and cysteine. So cysteine and cysteine हमारे non essential है, ठीक है, and it involved in the metabolic reaction. So methionine first होता है आपका, it required in the first होगा methionine का activation, then methionine आपका cysteine and cysteine में convert होगा and this cysteine का breakdown होके various compounds form होंगे. So activation of methionine, methionine से बनेगा हमारा SAM. It is very important topic, transmethylation reaction. methionine से आपका बनेगा S-adenosyl methionine. उसके बाद फिर with the help of the enzyme methionine adenyl transferase, then फिर आपका बनेगा SAH means transmethylation से, यानी S-adenosyl methionine. उससे बनेगा फिर homocysteine and homocysteine से with the help of the vitamin B12 और homocysteine methyl transferase आपका वापस बन जाएगा methionine. So homocysteine and serine बन के बनेगा cystathione and फिर उससे homoserine and cysteine का formation हो जाएगा. Then how it is a glucogenic hormone, जो homoserine है वो alpha keto hydroxybutyrate बना के propanoic acid बनाएगी. So this is how various vitamins are involved in this reaction. Methionine से बनेगा SAM, फिर SAH, transmethylation से means methyl जो है वो release हो गया. Then homocysteine, homocysteine से serine, cystathione, उससे फिर cysteine निकल जाएगा. Then homoserine से बनेगा आपका अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्रोपेनोइक एसिड से मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम, फिर सुसिनाइल कोएंजाइम से TCA के थ्रू ग्लूकोज का प्रोडक्शन. Then transmethylation reactions are very important because इससे various important compounds form होते हैं. SAM से HH बनेगा, then मिथाइल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मिथाइलेटेड हो जाएगा. जैसे आपका क्रिएटिन का फॉर्मेशन, एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन, नॉरएपिनेफ्रिन, कोलिन, मिलेटोनिन, कोलिन. तो ये आपकी ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शंस है. देन इनबॉर्न एरर ऑफ होमोसिस्टीन इज इम्पोर्टेंट. होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो इन द किस में बढ़ेगा, सिस्टाथायोन सिंथेज की डेफिशिएंसी के कारण. इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव. नॉर्मल वैल्यू होमोसिस्टीन का 3 to 15 माइक्रोमोल पर लीटर होता है. एंड इट इंक्रीज द नॉर्मली डिजीज में इंक्रीज होगा एंड मॉडरेटली एज के साथ यदि विटामिन B12 एंड B6 की डेफिशिएंसी है तो इंक्रीज हो जाएगा होमोसिस्टीन का लेवल इन द स्मोकर्स, अल्कोहलिक्स एंड इन हाइपोथायराइडिज्म. एंड कंजेनाइटल डिजीज में भी इंक्रीज होगा. एंड होमोसिस्टीन इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन. एंड होमोसिस्टीन जो है वो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में भी इंक्रीज होता है क्योंकि ये टाइप का इन्फ्लेमेटरी मार्कर है. सो बाय सीइंग द लेवल ऑफ होमोसिस्टीन हम मेजर कर सकते हैं कि पेशेंट को कितने चांसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस होने के एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के. क्यों? क्योंकि होमोसिस्टीन जो है वो कोलेजन से बाइंड करके आपका एंडोथेलियल डिसफंक्शन को मेजर करता है. तो यदि होमोसिस्टीन का डेफिशिएंसी होगी तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस होगा एंड जिसके कारण cardiovascular disease होगी. So homocysteine is a marker of to detect any cardiovascular diseases. Then cystathione beta synthase deficiency, इसमें increase हो जाएगा homocysteine and methionine का level and cysteine का level increase होगा. इसके general symptoms है mental retardation, Charlie Chaplin gait, skeletal deformities, ectopia lentis means जो आपका लेंस है वो उसका अपने प्लेस से हट जाएगा. देन ये आपका एंटीकोएगुलेंट फैक्टर इंक्रीज करता है तो थ्रोम्बोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. टेस्ट है साइनाइड नाइट्रोपिसाइड टेस्ट, वो पॉजिटिव आएगा. एंड यदि आपका होमोसिस्टीन का लेवल 300 माइक्रोग्राम पर 25 है तो इट्स एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. ट्रीटमेंट इसका लो मेथियोनिन डाइट एंड हाई सिस्टीन डाइट होगा. देन दिस इज द कैसे एंजाइम डेफिशिएंट होकर आपका डिजीज होगी. देन
सिस्टेन थ्रायोडीरिया जिसमें सिस्टाथायोन डेफिशिएंसी होगी, ये रेसेसिव इनहेरिटेंट है। देन इसमें यूरिन में सिस्टाथायोनिन इंक्रीज हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, एंड इसमें ट्रीटमेंट में आप मीथोनिन रेस्ट्रिक्ट करोगे एंड फॉलिक एसिड, सिस्टीन एंड पीएलपी यानी पायरोडॉक्सिन पायरोफॉस्फेट वो पेशेंट को सप्लीमेंट करोगे। Then acquired homocystinuria, it is either due to the deficiency of vitamin, any metabolic changes means renal disease and drug induced, कुछ ड्रग जो है जो कि इनहिबिट करती है एंजाइम्स को, उसके कारण होगा, एंड विटामिन। Then clinical importance of homocysteine, it is associated with the myocardial infarction and ज्यादा होमोसिस्टीन के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी हो सकता है फीटल में। Then cysteine, it is a sulfur containing amino acid, non-essential and glucogenic. Then cysteine से आपका पायरुवेट बनेगा। Then decarboxylation से बीटा मीथोनिन इथेनोलामीन बनेगा। Then it helps in the formation of taurine, and taurine is used in the nervous system. Then it form the ग्लूटाथायन। ग्लूटाथायन किससे बनता है? ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। देन द रोल ऑफ द ग्लूटाथायन, इट हेल्प इन द अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन में यूज होता है टू कीप द आयरन इन द फेरस स्टेट इन द हीम, एंड इट यूज इन द एंजाइम टू मेक इट इन द एक्टिव स्टेट, एंड यह आरबीसी की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करता है, एंड इट हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे जिससे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगा, जिससे वाटर बन जाएगा। ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है। कोई भी सब्सटेंस ऐड होगा वो उसको लेस रिड्यूसिंग सब्सटेंस करके एक्सक्रीट आउट कर देगा। देन सिस्टीन से ग्लूटाथायन बनेगा, टॉरिन बनेगा, डाइसल्फाइड, एंड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड सल्फेट्स। ये आपका पेप्साइड इन्वॉल्व इन द वेरियस डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। तो ये जनरल मेटाबॉलिज्म है आपका होमोसिस्टीन एंड सिस्टीन का, मीथोनिन एंड सिस्टीन। देन ये आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म मींस वो एरर्स जो आपके सिंस चाइल्डहुड प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये आपकी गैरोड टेट्रेड में आता है। सिस्टीन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव है, इसमें अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्टर में डेफिशिएंसी होगी, एंड इसमें सिस्टीन का एक्सक्रीशन बन जाएगा जिसको बोलेंगे सिस्टीन लाइसिन्यूरिया, एंड इसमें किडनी में सिस्टीन स्टोन्स मिलेंगे, एंड ट्रीटमेंट इसका एक्सेसिव फ्लूइड एंड यूरिन एल्कलाइजेशन के कारण, क्योंकि एसिडिक मीडियम में स्टोन फॉर्मेशन होती है तो इसलिए हम एल्कलाइजेशन करेंगे यूरिन का, ताकि क्या है जो स्टोन है वो सॉल्युबल हो जाए। एंड साइनाइड नाइट्रोपेप्टाइड टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है इनबॉर्न एरर्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का, एंड इट इज ऑल्सो कंफर्म बाय द क्रोमेटोग्राफी। ये इस तरीके से सिस्टीन स्टोन आपके एक्सरे में दिखता है। That's all.